गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सीरीज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल एग्जामिनेशंस। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज द मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन फॉर द स्टील बीम इज कंप्यूटेड बाय। ऑप्शन दिया यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय reduced permissible stress, shear stress in tension. Okay, maximum bending moment divided by reduced permissible bending stress in compression and maximum bending moment into reduced permissible bending stresses in compression. Okay, these are the options. Okay, whatever maybe. First of all, we know about that the modulus of section for the steel beam is okay. First of all, we know that what type of concept okay, in this question used. Okay, so we see here the question, detailed explanation of question. So we will elaborate the answer. Okay, so this is the basic question, this is the basic equation. We know about that. The basic equation is that m by I is equal to sigma by y. Okay, we know about this question. M by I is equal to f by y is equal to E by R. This is a basic equation, but in that equation m by I is equal to sigma by y. We know about that. Okay, so z is equal to z is equal to section modulus is equal to I divided by y max. Okay, section modulus is I divided by y max. Okay, m divided by sigma is equal to I divided by y. I divided by y. We know about that. I divided by is section modulus z. Okay, so equation is become z is equal to m divided by sigma. That is maximum bending moment divided by reduced permissible bending stress. Sigma is a reduced permissible stress. ओके, तो यहाँ पे ये satisfied हो रहा है इक्वेशन. सो इक्वेशन इज दैट सेक्शन मॉडुलस इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय सिग्मा. दैट्स अ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस. ओके, दैट इज द आंसर. ओके, वी so answer is that maximum bending moment divided by reduced permissible bending stress in the compression. Okay, this is our correct answer. Okay, next question आपके सामने अभी question number 42. If the quadrantal bearing of line is south 60 degree 6 minute west, then what is the whole circle bearing of the line? We should know about the diagram of whole circle bearing, so that's why the explanation is here for this question. Okay, we know about that. North, south, east and west. Okay, this is north. Okay, north, south, east and west. Okay, so हमें जो दिया गया है यहाँ पर 68 डिग्री नॉर्थ, 68 डिग्री साउथ वेस्ट यहाँ पे दिया था. तो 68 डिग्री 6 मिनट. ओके, सो नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे कितना रहता है 180 डिग्री. नॉर्थ टू साउथ कितना क्या रहता है आपका 180 डिग्री रहता है. ठीक है, तो होल सर्कल बेरिंग इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 68 डिग्री 6 मिनट. ओके, सो इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 248 डिग्री 6 मिनट. ओके, ऑप्शन में देखेंगे हम यहाँ पर, ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर 248 डिग्री 6 मिनट इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ triangle about centroid is given by where B is base width and H is height of the triangle. Okay, moment of inertia of triangle about its centroid is given by. So we should know about that moment of inertia of various shapes. First of all, I will show the various shapes of the geometrical shapes and in that moment of inertia of that. So we know that the moment of inertia of geometrical shapes. Okay, रेक्टेंगुलर शेप है यहाँ पे, ट्रायंगुलर, सर्कुलर और सेमी सर्कुलर. ये ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो है सेंट्रॉइड पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix इज इक्वल टू BH³ रहता है. और अगर बेस पे पूछा जाएगा रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए BH³/3. और ट्रायंगुलर पोर्शन में अगर सेंट्रॉइड पोर्शन में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है तो BH³/36 एंड बेस पे पूछा जाता है BH³/12. ओके, हमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? हमें यहाँ पर पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर अबाउट द सेंट्रॉइड पूछा गया है. तो सेंट्रॉइड के लिए हमारे यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? सेंट्रॉइड के लिए BH³/36 इज अ करेक्ट आंसर. BH³/36 इज अ करेक्ट आंसर. ओके, सो हम सर्कुलर का देख लेंगे यहाँ पे.
सेंट्रॉइड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई रेस टू 4 डिवाइड बाय 4, और अगर बेस पे पूछा जाएगा पाई रेस टू 4 डिवाइड बाय 2, पाई रेस टू 4 डिवाइड बाय 2। अगर हम सेमी सर्कुलर लेते हैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई आर रेस टू 4 डिवाइड बाय 8, एंड बेस के लिए पूछा जाएगा तो 0.11 r रेस टू 4 इज द moment of inertia about base. Okay, this is the important question, and this type of question will ask me in examination. Okay, next question in front of you is question number 44. Air probability apparatus test is used to find the dash of the cement. Okay, fineness, soundness, strength and consistency. First of all, you should know about the air probability apparatus and what is the soundness, fineness and strength, etc. We study here, we know about that. Okay, in detail we will see here. The fineness of the cement is checked to test the proper grinding of the cement, which significantly influence the rate of hydration. These two methods is used for determination of fineness of the cement. कौन से मेथड यहाँ पे यूज करते हैं? एयर प्रोबेबिलिटी मेथड फाइनेस के लिए। फाइनेस टेस्ट परफॉर्म ऑन द ब्रेन apparatus से भी किया जाता है, और उसके बाद सीविंग मेथड क्या है? दो मेथड यहाँ पे यूज किया जाता है जो फाइनेस मॉड्यूल्स ऑफ सीमेंट यहाँ पे मेजर करना होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये दो मेथड मैक्सिमम टाइम में पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, बहुत टाइम्स में एग्जामिनेशन पूछा गया प्रीवियस ईयर में। सो एयर प्रोबेबिलिटी मेथड क्या करने के लिए यूज करे जाते हैं? फाइनेस ऑफ सीमेंट मेजरमेंट करने के लिए। उसके बाद सीविंग मेथड भी है फाइनेस निकालने के लिए। सो डिटेल में जाएंगे थोड़ा सा। यहाँ पर एयर प्रोबेबिलिटी मेथड क्या होता है? द फाइनेस ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड एज अ स्पेसिफिक सरफेस। स्पेसिफिक सरफेस यहाँ पे मेजर करता है। स्पेसिफिक सरफेस इज एक्सप्रेस्ड एज द टोटल सरफेस एरिया इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ ऑल द सीमेंट पार्टिकल्स इन 1 किलोग्राम ऑफ सीमेंट। ओके, द हायर द स्पेसिफिक सरफेस इज द फाइनर सीमेंट विल बी। ओके, अगर यहाँ पे स्पेसिफिक सरफेस ज्यादा होगा तो फाइनर सीमेंट विल बी फाइन। ओके, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पे, जितना उससे हो उतना फाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइनेस टेस्ट परफॉर्म ऑन द ब्लेन apparatus। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइनेस मेजरमेंट करने के लिए ब्लेन apparatus यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पर ब्लेन, ओके, बी फॉर बार्ड अपन सो कैसे स्मूथ रहता है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे ब्लेन apparatus, ब्लेन कैसा था? टकला जैसा था, याद रखने के लिए हम यहाँ पे रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इट इज सो फाइनेस मेजरमेंट करने के लिए हम यहाँ पे सीमेंट का तो इस apparatus का उपयोग करते हैं। इट इज प्रैक्टिकली अ मैनोमीटर इन द U-tube फॉर्म। वन आर्म ऑफ द मैनोमीटर इज प्रोवाइडेड एट द टॉप विद अ conical socket to form an airtight fit with the conical surface of the same. Okay, this is the apparatus used for this fineness of cement. Okay, next method क्या है यहाँ पे? Sieving method. This method serves only to demonstrate the presence of the coarse cement in particles. Coarse cement in the particle. This method is primarily suited to checking and controlling the production process. Okay, checking the controlling and production process. And the fineness of cement is measured by sieving it on standard sieves. कौन से standard sieves यहाँ पे लेते हैं? The proportion of cement of which the grain sizes are larger than the specified mesh size is thus determined. Okay, so यहाँ पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस क्या रहेगा? तो एग्जामिनेशन में यहाँ पे 4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। टू डिटरमाइन द फाइनेस ऑफ सीमेंट, कुछ कौन से आप मेथड यूज करते हैं यहाँ पे? एयर प्रोबेबिलिटी मेथड है और सीविंग मेथड है। एयर प्रोबेबिलिटी में कौन सा ऑपरेटर आप यहाँ पे यूज करते हैं? तो ब्लेन यहाँ पे ब्लेन apparatus यहाँ पे यूज किया जाता है। इस पे ऊपर क्वेश्चन पूछा गया हर बार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने। सो इसका आंसर यहाँ पे होना चाहिए। तो फाइनेस निकालने के लिए हम एयर प्रोबेबिलिटी apparatus यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45। इन स्टील स्ट्रक्चर्स, इन स्टील स्ट्रक्चर क्या पूछा गया है? इन स्टील स्ट्रक्चर द थिकनेस ऑफ द फ्लैट लेसिंग बार शैल नॉट बी लेस देन द इन स्टील स्ट्रक्चर द थिकनेस ऑफ द फ्लैट लेसिंग bar shall not be less than dash of this effective length for single lacing and dash of the effective length of the double lacing. Okay, so ये स्टील का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका क्लॉजेस हमें पता होना चाहिए। स्टील और आरसीसी में यहाँ पे क्लॉजेस के ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे यहाँ पे क्या क्लॉज है इसके लिए, इसके लिए क्या क्लॉज है लेसिंग बार के लिए, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दिया है? फॉर द डिजाइन ऑफ ब्लेस्ड कॉलम्स, for the design of laced columns, lacing में the thickness of the lacing flat
for a single lacing system should be less than 1/14 of its effective length and for double lacing system it should be less than the 1/60 of its effective length. This is a clause. You should know about that. This clause is steel structures के लिए the thickness of the lacing flat for the single lacing system should be less than 1/40 of its effective length and for double lacing single lacing के लिए कितना होना चाहिए? Single lacing के लिए should be less than 1/40 of effective length and double lacing system के लिए less than 1/60 of the effective length. Okay, क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे देख लेते हैं हम. यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है? In steel structure the thickness of flat lacing bar shall not be less than the thickness of lacing. किसके लिए पूछा है? Dash of its effective length for a single lacing के लिए हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था 1/40th and 1/60th effective length for double lacing के लिए. Okay, this is the correct answer. Okay, so that's why you should know about that this clause also. Next question in front of you is that which segment of the environment constitutes the real of living organisms and their interactions. Okay, so जनरल क्वेश्चन है यहाँ पे, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट इसके ऊपर भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि विच सेगमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट द रियल्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरैक्शंस. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है. तो इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने मैं देता हूँ. यहाँ पर बायोस्फीयर जो होता है, यहाँ पे बायोस्फीयर जो होता है रिलेटिवली थिन लाइफ सपोर्टिंग स्ट्रैटम ऑफ अर्थ. यहाँ पे लाइफ रहती है, मतलब यहाँ पे आप जिंदगियां रहती है, ऐसे बोल सकते हैं हम. बायोस्फीयर रिलेटिव थिन लाइफ सपोर्ट स्ट्रैटम ऑफ अर्थ सरफेस एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ फ्यू किलोमीटर्स इन द एटमॉस्फेयर टू डीप सी वेंट्स ऑफ द ओशन. The biosphere is global ecosystem and composed of living organisms, biota, and the abiotic non-living factors from which they derive energy and nutrients. Okay, abiotic से हम क्या लेते हैं? Energy या which derive energy and nutrients. So that's why you should know about this. Is a general question, environmental related question hai. So that's why you should answer that question. Which segment of the environment constitutes of the realm of living organisms and their actions is a biosphere. Okay, next question is that question number 47. Which question is that? Dash is the normal method adopted for separation of particles in fine grained mass. Dash is the normal method adopted for separation of particles in fine grained mass. ओके, फाइन ग्रेन मास के लिए हम क्या यूज करते हैं? नॉर्मल मेथड अडॉप्टेड फॉर सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फाइन ग्रेन मास. जियोटेक्निकल का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया. सो यहाँ पर हम इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखते हैं. 47 पार्टिकल साइज एनालिसिस यहाँ पर दिया गया है. सिविंग एनालिसिस फॉर ग्रेन साइज एंड सेडिमेंटेशन एनालिसिस फॉर द फाइन ग्रेन साइज. सो यहाँ पे हम आपको ऑथेंटिक डाटा प्रोवाइड करेंगे. हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा ये क्वेश्चन का डाटा. कोई भी एग्जाम दोगे आप, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपको, जिसके एक्सप्लेनेशन के बाद क्वेश्चन नहीं जाएगा. सो दैट्स व्हाई यू शुड लिसन दिस केयरफुली एंड you should note down this point also. Particle size analysis, sieve analysis for coarse grained soil, sedimentation analysis for the fine grained soil. Okay, यहाँ पर पार्टिकल साइज का एनालिसिस करते समय दो मेथड का यहाँ पे यूज किया जाता है. सिव एनालिसिस किया जाता है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस किया जाता है. सिव एनालिसिस हम किसके लिए करते हैं? सिव एनालिसिस हम यहाँ पे कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए करते हैं. सेडिमेंटेशन एनालिसिस यहाँ पर हम फाइन ग्रेन सॉइल के लिए करते हैं. ठीक है, यहाँ पर इससे ही क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन पूछा गया है सिव एनालिसिस के ऊपर. कोर्स ग्रेन सीव्स एंड फाइन ग्रेन सीव्स, फाइन सैंड सीविंग. ओके, कोर्स के लिए हम यहाँ पर देखते हैं 4.75 mm जो डायमीटर होता है, इन बिटवीन 4.75 mm एंड टू 80 mm. ओके, कोर्स के लिए. एंड फाइन सैंड जो होता है 0.075 mm इन बिटवीन. डायमीटर जो होता है पार्टिकल का 0.075 mm टू 4.75 mm इसके बीच में रहता है फाइन. ओके, और जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस यहाँ पे जो करते हैं पिपेट मेथड से, हाइड्रोमेट्रिक मेथड है, पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड यहाँ पे यूज किया जाता है. ओके, यहाँ पर अभी फाइनेस सैंड सीविंग में ड्राई और वेट भी किया जाता है. ड्राई और वेट कब यूज करते हैं? यूजफुल फाइनेस जहाँ पर फाइनेस स्मॉल होता है और यहाँ पे फाइनेस जब लार्ज होता है, यहाँ पे आप वेट मेथड यहाँ पे यूज करते हैं. दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन. विच क्वेश्चन इज देयर? डैश इज द नॉर्मल मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स इन फाइन ग्रेन मास. फाइन ग्रेन मास में से अगर हमें सेपरेट करना है पार्टिकल्स तो हम कौन सी मेथड यूज करते हैं? यहाँ पर देखिए हाइड्रोमीटर मेथड है. यहाँ पे
फाइन ग्रेन सॉइल हमें ये करना है, रिमूव करना है, तो हम हाइड्रो मेथड, पिपेट मेथड यहाँ पे यूज करते हैं। डिटेलिंग में जाएंगे तब जाके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। So that's why you should know about that. Is the hydrometer analysis is the normal method adopted for separation of particles in the fine grained soil. अगर यहाँ पे coarse grained soil पूछा जाता तो यहाँ पे dry और wet ऑप्शन आ जाते, और ये this is the you should know about that. Okay, next question in front of you is that question number 48. Question number 48 क्या बोलता है? All of the following are the methods of valuation of building except okay, valuation estimating का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। All of the following are the method of valuation of a buildings except quantity survey method, cost based method. Okay, so you should know about that methods. Before that इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पहले हम डिटेल में जाएंगे, वेरियस मेथड ऑफ वैल्यूएशन कौन से यहाँ पे पढ़ लेते हैं। वेरियस मेथड है, डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन है, वैल्यू बेस्ड ऑन कॉस्ट है, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द प्रॉफिट है। Okay, and value by development method, dental method of valuation. Okay, this is the 5 types of methods. 5 types of method. You should know about that. This type of methods. Okay, various methods of valuation. Depreciation method of valuation. Okay, in this method, the structure is divided into 4 parts for the calculating depreciation. Wall, roofs, floors, doors and windows. Okay, 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है डिप्रिसिएशन को। डिप्रिसिएशन, वॉल, रूफ्स, floor, door and windows. Okay, depreciation method for valuation. Next method है value based on the cost, जहाँ पर cost के बेस के ऊपर भी value डिपेंड करता है। In this method, the actual cost of the construction is found out and valuation is done after the considering depreciation and considering the type of construction and design of the construction. Okay, कौन सा टाइप का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर है, डिजाइन कौन से टाइप का है, उसके ऊपर हम यहाँ पे कॉस्ट डिसाइड करते हैं। कौन से टाइप का कंस्ट्रक्शन है, कौन से टाइप का यहाँ पे डिजाइन है, उसके ऊपर हम वैल्यू बेस्ड ऑन द कॉस्ट यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट मेथड है वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें कौन सी बिल्डिंग यहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग है या कमर्शियल बिल्डिंग है, क्या प्रॉफिट देती हो, क्या रेंट हमें मिलता है। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द प्रॉफिट अंडर दिस सब हेड वैल्यूएशन ऑफ cinemas, theaters and hotels, bank, big shops, etc. located at the suitable place is done where the profit is capitalized value. Okay, जहाँ पे profit है, profit capitalized value रहता है यहाँ पर. Okay, the capitalized value is calculated by the multiplying years purchase with a net profit. इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनेशन के ऊपर. कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. कैपिटलाइज्ड वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाइंग ईयर परचेस विद नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे करेंगे तब कैपिटलाइज्ड वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेशन मिल जाएगा. द नेट प्रॉफिट इज वर्कड आउट आफ्टर डिडक्शन ऑल पॉसिबल आउटगोइंग्स एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम द ग्रॉस इनकम. In such cases, the cost will be too high as compared with the cost of construction actually incurred. The value of development method. This method is also used for working out the value of buildings. And certain cases, some addition, alteration, and improvement are carried out, which increase the cost of the buildings. और rental method of valuation क्या करती है? In this method, the rent of the building is used as a base or calculating the value of the buildings. Okay, this type of valuation method, various methods of valuations यहाँ पे हमने देखा है. Depreciation method of valuation है, value based on the cost है. Depreciation method हमने क्या देखा था? Depreciation किसके ऊपर डिपेंड करता है? 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. वॉल, रूफ्स, फ्लोर्स एंड डोर्स एंड विंडोज के ऊपर डिपेंड करता है. वैल्यू ऑफ बेस्ड ऑन कॉस्ट, जहां पे वैल्यू बेस्ड ऑन द कॉस्ट, आपका कॉस्ट इसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन से टाइप की बिल्डिंग है, कौन सा टाइप का डिजाइन यहाँ पे यूज किया है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द प्रॉफिट, अगर यहाँ पे आपका सिनेमा हॉल है, थिएटर है, होटल्स है, बैंक्स, बिल्डिंग्स है, तो वहाँ पे आपका कैपिटल वैल्यू डिफरेंट रहेगा. द कैपिटल वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड बाय द, कैसे कैलकुलेट करेगा? तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन कैसे करेगा? मल्टीप्लाइंग द ईयर परचेस विद द नेट प्रॉफिट. जो भी नेट प्रॉफिट आ रहा है मल्टीप्लाई बाय ईयर परचेस, आपको यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी मिल जाएगा. और नेक्स्ट यहाँ पे बोलता है वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट मेथड, जहाँ पे कौन सी मेथड यहाँ पे यूज किया जाता है. दिस वन सो इज यू वर्किंग एट द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स. In certain cases, some additional alterations and improvements are carried out, which increase the cost of the building. उसके वजह से cost of building भी use
बढ़ जाती है। रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन, यहाँ पे रेंट यहाँ पर किस टाइप से आ रहा है आपको, दिस मेथड इज रेंट और बिल्डिंग इज यूज्ड एज बेस्ड ऑन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग्स। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस, सो दिस इज द योर एक्सप्लेनेशन, दिस इज द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशंस, so you should know about that, the question, how you will answer that question. All of the following are the methods of valuation of the buildings except quantity survey method is not ये कॉस्ट बेस्ड मेथड है, रेंटल मेथड है, प्रॉफिट बेस्ड मेथड है, तो क्वांटिटी सर्वे मेथड इज नॉट अ वैल्यूएशन मेथड, सो यू करेक्ट आंसर इज दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 दिख नहीं रहा थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन। IRC इंडियन रोड कांग्रेस हैज क्लासिफाइड द बोर्ड्स, sorry, the Indian road calculation class road congress has classified the roads in India into the national highways, state highways, major district roads, other district roads and village roads. Okay, there are three types of plans in this road development process. There is a Nagpur, Lucknow and Bombay. Nagpur, Bombay and Lucknow. So in that there is a 5 types of roads are classified. Okay, in which, so I will detail structure we will discuss here about that question. Okay, so detail structure, first year 20-year plan is that Nagpur plan, second जो था Bombay, second जो था Bombay plan था, third plan था Lucknow plan. So you should know about that, this table, you should just by head this table and whatever maybe the questions we will ask in your examination, so there will be the correct, your answer will be correct. So that's why Nagpur plan कब हुआ था, 1943 से 1963 में हुआ था। टोटल रोड कितना लिया था, 5,532 किलोमीटर था और डेंसिटी कितना 16 किलोमीटर पर रोड लेंथ पर 100 किलोमीटर पर स्क्वायर एरिया, और डेवलपमेंट अलाउंस 15% and road divided into 5 categories, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मिडिल डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड, ऐसे डिवाइड किया था 5 कैटेगरीज में। इसके ऊपर बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा पैटर्न यहाँ पे यूज किया जाता है, स्टार ग्रिड पैटर्न यहाँ पे यूज किया जाता है, और बॉम्बे में क्या स्टार ग्रिड पैटर्न हम नागपुर में यूज करते हैं, और लखनऊ में कौन सा यूज करते हैं, लखनऊ में यहाँ पर हम स्क्वायर ग्रिड पैटर्न यहाँ पे यूज करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। सो ओके, तो रोड सेकेंड ईयर प्लान, जो सेकंड प्लान था हमारा बॉम्बे प्लान 1961 to 1981, टोटल लेंथ, रोड लेंथ जो 10,57 किलोमीटर्स, near about 3, okay, and density 32 kilometers road length per 100 kilometers square, 16, 32 and 82. Okay, so you should so picturize this, so print in your mind this picture, so you will answer that question. Okay, density हो गया, consider यहाँ पे क्या consider किया गया है, यहाँ पे consider है, फिर development of allowance इतना 5% देता है, every town with a population about 2,000 in the plain and 1,000 in semi hills areas and 500 in hilly areas should be connected by the metal road. Okay, so that is in that portion there is no question will ask, but question will ask in the which type of roads and when that started and कौन सा टाइप का हम यहाँ पे यूज करते थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार एग्जामिनेशन में। रोड यहाँ पे रोड लखनऊ में रोड डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, primary, tertiary and secondary, whatever may be. Okay, this is the about development plan. So what is the answer of your question? Okay, IRC Indian Road Congress, the 5 types of roads there is national highways, state highways, major district road and village roads is divided into the 5 types is the Nagpur road plan. Okay, last question in front of you is the 50. The following are the acceptable criteria for the flexure strength of concrete. Thus the concrete compiles with the specified flexure strength. Okay, flexure strength. The question क्या पूछा गया है, following are the acceptable criteria for the flexural strength of concrete. Acceptable criteria for the flexural strength of the concrete. Thus the concrete compiles with the specified flexure strength. Okay, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें पूछना है कि हम उसमें से हमें बताना है उसमें से कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो फर्स्ट सेंटेंस आपको सामने में पेश करता हूँ यहाँ पर, the mean lay strength determined from any group of the 4 consecutive test results exceeds the specified characteristic strength by at least 0.3 Newton per square. Okay, what is that? You should know about that. The mean strength determined from the any group of 4 consecutive test results exceed the specified characteristic strength by at least 0.3 Newton per square. Okay, what is the right or what is the wrong? और next second question है, the second option दिया है, so statement दिया है, strength determined from any test result is not less than the specified characteristic strength of 0.3 Newton per square. Okay, you should know about that.
कैरेक्टर स्ट्रेंथ क्या होता है। सो अब पहले हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पढ़ते हैं, क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, क्या है फ्लेक्सर स्ट्रेंथ। यहाँ पर ये क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है यहाँ पर। व्हेन देखो ये क्लॉज के ऊपर क्वेश्चन, यही स्टेटमेंट दिए गए यहाँ पर और उसी के ऊपर पूछ रहे हैं कि ये स्टेटमेंट सही या गलत है। व्हेन द बोथ फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट द कंक्रीट कंपाइल्स विद द स्पेसिफाइड फ्लेक्सर स्ट्रेंथ। ओके, वही क्वेश्चन है और इसी का ये दो सेंटेंस दिए गए हैं और उसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा राइट और रॉन्ग है, दोनों करेक्ट है। द मेन स्ट्रेंथ ऑफ डिटरमाइंड फ्रॉम द एनी ग्रुप ऑफ 4 consecutive टेस्ट रिजल्ट्स एक्सीड्स द स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बाय एटलीस्ट 0.3 Newton per meter square. The mean strength determined from the any group of 4 consecutive test results. Any 4 consecutive test results exceeds the specified characteristic strength by at least 0.3 Newton per square. The strength determined from the any test results in not less than the specified characteristic strength less than 0.3 Newton per meter square. Okay, so that's why this is a clause. You should know about that, this clause. So that's why answer is that both the criteria are correct. Okay, thank you for listening. This is the MCQ series, previous year MCQ series हम यहाँ पे आपके सामने पेश किया और एक MCQ सीरीज जो भी होगा आपके एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशन देने वाले हैं आप जेई लेवल के, ए लेवल के, उसके लिए बहुत ही यूजफुल हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आपको इस पे लाइक और शेयर करना है, जाके हम अच्छे वीडियोस आपको बनाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।